So my dear student, this proto-language is not something that exists now. It is reconstructed by historical linguists on the basis of written records, coins, inscriptions, and so on. A proto-language can never be reconstructed completely, and it is a complex and laborious task to trace the similarities between language and enable the reconstruction of those proto-languages. However, historical and comparative linguistics make list of words from different languages and compare sound similarities and the occurrences of sounds in particular position in these words. That is, these linguistics took the sound correspondences and built cognates. A cognate is a word which is related genetically to other words which together form a set of cognates, which is related genetically to the other, which together form a set of cognates descended from a proto-language. For example, there is a set of words: frater, Latin; brother, English; or Bharata, Sanskrit. I have written a research paper in this regard and made a comparison in relevance of Sanskrit in modern languages or modern times. This book was published. This book was published by Mr. Chakravarti of Sanskrit Department, Women College, and published by Momita Prakashni. So you can read that. That's a very good paper. These are cognates belonging to a set relating to a word which may be existed in Proto-Indo-European, in which cognate there is some sound similarly that shows that there is a genetic link. However, there is also a sound change which indicates that each belongs to different languages. Bhrata, Pitra, Matra, the mother, father, brother. So how it has been taken from different languages means a comparative study. In this way, the comparative linguist attempts to construct cognate sets and attempt to reconstruct protoforms so as to give an account of the changes that have occurred in the development of languages. Though historical linguistics and comparative linguistics study the laws operating in languages change and in the related languages, hence this type of study is related to descriptive linguistics. Also, descriptive linguistics take account of language change when it studies two or more varieties of a language that exist at a particular time. Two or more language. जैसे आप बोलते हैं नवीन वर्ण, बट हिंदी में लिखा जाता है नवीन वर्ण. So there is no w sound in Bangla. It is always ba. Like Rabindranath Tagore, Ravindra, Nath, Rabindranath Tagore, but we say Rabindra, Rabindra. Naveen, Navin, Naveen, but you write Nabin, Nabeen Varan. So this is also a comparative study of the language. You can make this kind of comparative study and then you can write a book also, and you can do the PhD also on this. So you'll find this kind of research papers in a lot of books which are published there. But you have to be very particular about it if you want to go for linguistics. There is no imaginations, creativity and other things over here. It's only based on certain facts, logic. किसी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं. और अगर भाषा विज्ञान की आप बात करते हैं तो आपको क्रमबद्ध होना पड़ेगा, सुसंगठित होना पड़ेगा और सुव्यवस्थित होना पड़ेगा. So my dear students, hence this type of study is related to descriptive linguistics. Also, descriptive linguistics take account of language change when it studies two or more varieties of a language that exist in a particular time. When two or more descriptions of language are contrasted, for example, Tamil and Hindu, it is known as contrastive linguistics. This is based on synchronic descriptions of the linguistics or languages. That is, it is not historical.
The distinction between descriptive, that means synchronic, and historical, diachronic linguistics is made by means of a diagram, as we have already told, where the distinction is also explained in detail. At last, we would like to conclude that modern linguistics is mainly descriptive. Modern linguistics is mainly descriptive because it attempts to describe fully and accurately the structure of a language as it exists at a given time. It is a synchronic study of language. It describes system in a language at all levels of structure. The phonological levels or system of sounds, the morphological level or system of word formation, the syntactic level or level of sentence formation, and semantic system or level of meaning. This is discussed in detail. So my dear students, we have discussed today about what is the definition of linguistics, what are the types of linguistics, what is linguistics a science or a scope of linguistics. So definition, scope and types we have discussed. Now I would like to apprise my students with different aspects in a different language, and I hope my students will pay attention to this. I will tell you now in detail what is this भाषा विज्ञान. ये भाषा विज्ञान होता क्या है, लिंग्विस्टिक्स क्या है. मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिस सार्थक मौखिक साधन को अपनाता है उसे भाषा कहते हैं. तो भाषा क्या है? मनुष्य अपने भावों, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जिस सार्थक मौखिक साधन को अपनाता है वह भाषा है. यद्यपि संकेत आदि के द्वारा भी कुछ भावों की अभिव्यक्ति हो जाती है, परंतु अपने भावों को सूक्ष्म, I told you ABCRL, accuracy, brevity, clarity, relevance and logic, अपने भावों को सूक्ष्म और स्पष्ट, ब्रीफ और क्लियर रूप में व्यक्त करने का साधन भाषा है. क्या है? To express your emotions briefly and clearly with relevance and logic is language. मनन, चिंतन और विचार का साधन भी भाषा ही है. मनन, चिंतन, मेडिटेशन एंड ब्रोडिंग, मनन, चिंतन और विचार का साधन भी भाषा ही है. भाषा विज्ञान क्या है, इसे समझने की कोशिश हिंदी में कीजिए. अभी तक तो मैंने आपको अंग्रेजी में समझाया. ये भाषा विज्ञान डिफ़िकल्ट है, थोड़ा आपको भी डिफ़िकल्ट लगता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, और बाकी सभी समय में ये डिफ़िकल्ट लगता रहा है, परंतु मैं आपको इसको सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसा कि मैंने कहा था, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, तुम्हें जगाने आ रहा हूँ. शूल, कांटा, थॉर्न, शूल जिसको समझते रहे आज तक, फूल उसको बनाने आ रहा हूँ. आई एम स्ट्राइविंग टू मेक इट मोर इजी विद द हेल्प ऑफ हिंदी लैंग्वेज. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मनन, चिंतन और विचार का साधन भी भाषा ही है. भाषा ही वह एक जीवन ज्योति है. भाषा ही वह एक जीवन ज्योति है जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करती है. मानव के विचार ही उसका समाज से संपर्क स्थापित करते हैं. जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, व्यक्ति मीन्स लड़का या लड़की, आदमी या पुरुष या महिला, जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करती है, मानव के विचार ही उसका समाज से संपर्क स्थापित करते हैं. यह संपर्क भाषा के माध्यम से ही होता है. मेरे प्यारे दोस्तों, ये उन छात्र छात्राओं के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भाषा को, भाषा विज्ञान को, लिंग्विस्टिक्स को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर और इसको अपने प्रोफेशन के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं.
जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करती है। मानव के विचार ही उसका समाज से संपर्क स्थापित करते हैं। यह संपर्क भाषा के माध्यम से ही होता है। यदि मनुष्य के पास भाषा जैसा अमोघ शस्त्र न होता तो मनुष्य भी पशु पक्षियों जानवरों के समान अपने भावों को अत्यंत स्पष्ट रूप में प्रकट करने में असमर्थ ही रहता। यदि मनुष्य के पास, यदि आपके पास भाषा जैसा अमोघ शस्त्र न होता, এখন আমি আপনার সঙ্গে বাংলাতেও বলতে পারি, ইংরেজিতেও বলতে পারি, হিন্দিতেও বলতে পারি, গুজরাটিতেও কথা বলতে পারি, परंतु ককবরক তো আমি জানি না, শিখতে পারছি না। সেই হিসাবে उसी तरह से यदि मनुष्य के पास भाषा जैसा अमोघ शस्त्र न होता तो मनुष्य भी पशु पक्षियों के समान अपने भावों को अत्यंत स्पष्ट रूप में प्रकट करने में असमर्थ ही रहता। विश्व के प्रत्येक देश में कोई न कोई भाषा बोली जाती है और भारत में ही कितनी सारी बोलियां बोली जाती हैं। यहाँ बांग्ला में ही कोई नवाखली भाषा है, कहीं सिलेट भाषा है, अन्ना भालाशिनी। मानव के विचार हो उसका समाज से संपर्क स्थापित करते हैं। यह संपर्क भाषा के माध्यम से ही होता है। यदि मनुष्य के पास भाषा जैसा अमोघ शस्त्र न होता तो मनुष्य भी पशु पक्षियों के समान अपने भावों को अत्यंत स्पष्ट रूप में प्रकट करने में असमर्थ रहता। संसार के प्रत्येक देश में कोई ना कोई भाषा बोली जाती है और वही उनके विचार विनिमय का माध्यम है। अगर आप एक भाषा के अच्छे विद्वान बन गए तो दूसरी भाषा को सीखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 2004 में मुझे एक संगठन स्पेन में भेज रहा था स्पेनिश सिखाने के लिए, लेकिन उसी समय मैं केंद्रीय विद्यालय का अध्यापक बन गया, इसलिए स्पेनिश नहीं सीख पाया। क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है कि आप एक भाषा के अच्छे विद्वान हैं तो दूसरी भाषा को सीखने में आपको असुविधा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ग्रामर, व्याकरण वो सब तो एक ही होते हैं, सिर्फ आपको वर्णमाला सीखने की जरूरत पड़ती है। भाषा वस्तुतः मानव शरीर में देवी अंश है। यह भाषा वस्तुतः मानव शरीर में देवीय अंश है जो इस सृष्टि में केवल मनुष्य मात्र को ही प्राप्त होता है। यह दिव्य ज्योति है, यह दिव्य ज्योति है और यह दिव्य ज्योति ही समस्त संसार में अपना प्रकाश फैलाए हुए है। और इसी समस्त संसार में प्रकाश फैलाए हुए भाषा को जॉन मिल्टन ने तभी तो कहा, illumine what in me is dark, illumine what in me is dark, rage and support, so that I may justify the wage of God to man. My dear students, you also have to justify the wage of your Prime Minister to India, the wage of your Chief Minister to India, the wage of your parents to India, and the wage of your teachers also to India, and the wage of your classmate and your neighborhood also to India. You have to justify. You must not read to contradict, not to confute, but to consider and weigh. दिल की तराजू पर तौलिए what is right and what is wrong. यहाँ रावण कौन है और राम कौन है, यहाँ कृष्ण कौन है और कंस कौन है, यहाँ सही क्या है और गलत क्या है, उसको सही तराजू पर तोलना सीखो। भाषा वस्तुतः मानव शरीर में देवीय अंश है जो इस सृष्टि में केवल मनुष्य मात्र को ही प्राप्त होता है। यह दिव्य ज्योति ही समस्त संसार में अपना प्रकाश फैलाए हुए है। Illumine what in me is dark, rage and support, so that I may justify the wage of God to man. इस भाषा रूपी ज्योति के बिना
इस माता सरस्वती के ज्ञान के बिना, इस ज्ञान की देवी सरस्वती की बुद्धि के बिना संसार घोर अंधकार में होता है। संसार घोर अंधकार में होता है, और जब ज्ञान का प्रकाश होता है सब अंधकार मिट जाता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही, जब मैंने खुद के अंदर एक रोशनी को देखा तब मुझे पता चला कि भगवान कहाँ है। यह दिव्य ज्योति ही समस्त संसार में अपना प्रकाश फैलाए हुए है। ज्ञान की देवी, भाषा की देवी, संगीत की देवी, यह दिव्य ज्योति ही समस्त संसार में अपना प्रकाश फैलाए हुए है। इस भाषा रूपी ज्योति के बिना घोर संसार घोर अंधकार में हो जाता है। इदमंधतम कृत्सनम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दाहयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। भाषा रूपी इस देवी अंश के द्वारा ही मनुष्य इस संसार में सर्वोत्तम जीव माना जाता है। आप अपने मन के भावों को दूसरे से कह पाते हैं, इसी भाषा रूपी इस देवीय अंश के द्वारा ही मनुष्य इस संसार में सर्वोत्तम जीव माना जाता है। वह अपने वाग व्यवहार के द्वारा ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए है। अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए संगीत, कला, साहित्य, ज्ञान, वह अपने वाग व्यवहार के द्वारा, अपने संगीत और अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान और अपनी भाषा के द्वारा ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए है। अगर आपकी भाषा मृदु है, जैसे कि बांग्ला भाषा मृदु भाषा है, अगर आपकी भाषा मृदु है, हारमोनियस है, मेलोडियस है, संगीत में है, तो आप सभी के दिलों में छा जाएंगे। चाहे वो वाणिज्य के छात्र छात्राएं हों, विज्ञान के छात्र छात्राएं हों या कला के छात्र छात्राएं हों, कल जब आप अध्यापक बनकर जाएंगे, प्रोफेसर बनकर जाएंगे और आपके पास एक अच्छी भाषा होगी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटिव स्किल्स होंगी, तो फिर आपको परमात्मा आपके साथ रहेगा और आप सभी संसार के समस्त मनुष्यों के अंदर विद्यमान उस आत्मा के रूप में स्थापित हो जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। भाषा वह अपने वाग व्यवहार के द्वारा ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए है। साथ ही वह चर और अचर जगत का स्वामी भी भाषा के कारण बना हुआ है। इससे भाषा के महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। वैदिक ऋषियों ने सर्वप्रथम ऋग्वेद में ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 125 में वाक सूक्त के 8 मंत्रों में इस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि वाक तत्व या भाषा ही वह दिव्य ज्योति है जो मानव को, देखिए मानव को, मैंने अपनी पीएचडी की बुक में लिखा है कि मनुष्य के पास 4 तरह का एटीट्यूड होता है। नंबर 1 एनिमलिस्टिक एटीट्यूड, नंबर 2 ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड, नंबर 3 डिविनिस्टिक एटीट्यूड, और नंबर 4 द sublime, the super soul. But 3 are the main: animalistic, humanistic और divinistic. इस भाषा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि वाक तत्व या भाषा वह दिव्य ज्योति है जो मानव को ऋषि, देवता या विद्वान बनाती है। अर्थात ये भाषा ही है जो आपको विद्वान, ऋषि या देवता बना सकती है। अहमेव स्वंविदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः यं कामयेतं तुमग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तमर्षिं तं सुमेधाम्।
अहमेव सोमिदं वदामि। जुष्टं देवोभिरुते मानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तमर्षिं तं सुमेधाम्। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इससे स्पष्ट है कि व्यवहारिक दृष्टि से भाषा की कितनी उपयोगिता है। भाषा का महत्व स्वीकार करते ही भाषा विषयक और अनेक जिज्ञासाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे भाषा क्या है, व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, व्हाट इज़ लैंग्वेज, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा कैसे बनती है, भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, भाषा के सूक्ष्म अवयव क्या हैं, उनकी उच्चारण विधि क्या है, मीन्स फोनोलॉजी, विश्व की भाषाओं का परस्पर क्या संबंध है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ द लैंग्वेजेस। इन जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए शताब्दियों से प्रयत्न चालू रहे हैं। सर विलियम जोन्स ने 1786 ईस्वी में संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हुए, सर विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हुए समय संस्कृत की लैटिन और ग्रीक से अनेक अंशों में समानता प्राप्त की। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलरिटीज बिटवीन टू लैंग्वेजेस, एंड ही रॉट हिज PhD. You also can write that, and you will get the degree of doctorate. And there are very few doctors, very few efficient professors of linguistics in India. Not only in India, even in the world. सर विलियम जोन्स ने 1786 ईस्वी में संस्कृत भाषा का अध्ययन करते समय संस्कृत की लैटिन और ग्रीक भाषा से अनेक अंशों में समानता प्राप्त की और इनके कंपेरेटिव, तुलनात्मक, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कंपेरेटिव अध्ययन पर बल दिया। इस प्रकार संस्कृत भाषा तुलनात्मक भाषा विज्ञान की मूल भाषा बनी। सर विलियम जोन्स द्वारा डाली हुई नींव ही आज विकसित पुष्पित और पल्लवित होकर भाषा विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है। भाषा विज्ञान संबंधी सभी प्रश्नों और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। भाषा विज्ञान का संबंध विश्व की समस्त भाषाओं से है। अतः वह एक भाषा से संबंध विषयों का ही नहीं, अपितु विश्व की समस्त भाषाओं का सामूहिक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण उसकी रूप, सिद्धि, पद निर्माण मीन्स मॉर्फोलॉजी और वाक्य प्रयोग सिंटैक्स की शिक्षा देता है। सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी की शिक्षा देता है। परंतु भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण होने के कारण ध्वनि परिवर्तन, फोनोलॉजी आदि सभी दिशाओं में उसके कारण को भी व्याख्या करता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान व्याकरण दर्शन कहा जाएगा, क्योंकि यह भाषा के दार्शनिक रूप को भी स्पष्ट करता है। भाषा विज्ञान के उच्चारण, प्रयोग का और उपयोग की शिक्षा देता है। भाषा की विभिन्न अंगों का सूक्ष्म अति सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करता है। भाषा के सर्वांगीण विवेचन के साथ ही उसमें जीवनोपयोगी भी बनाता है। भाषा विज्ञान विश्व भाषा शिक्षण में अत्यंत सहायक है। यह विश्व की विभिन्न भाषाओं की समानता की स्थापना करके विश्व एकता और विश्व बंधुत्व का भाव जागृत करता है। सर विलियम जोन्स ने कहा है, द संस्कृत लैंग्वेज वॉट एवर मे बी इट्स एंटिक्विटी इज ऑफ ए वंडरफुल स्ट्रक्चर। सर विलियम जोन्स ने क्या कहा है, द संस्कृत लैंग्वेज वॉट एवर मे बी इट्स एंटिक्विटी इज ऑफ ए वंडरफुल स्ट्रक्चर, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could have been produced by accident, so strong that no philosopher could examine the Sanskrit, Greek, and Latin without believing them to have sprung from some common source, which perhaps no longer exists. There is a similar region, though not quite so possible, for supposing that both the Gothic and the Celtic had the same origin with the Sanskrit. He has written this. R.H. Robbins has taken out from this a history of linguistics. History of linguistics में
रॉबिन्सन ने विलियम जोन्स के इन शब्दों को अभिव्यक्त किया है, that the Sanskrit language, whatever may be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more executively defined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could have been produced by accident, so strong that no philosopher could examine the Sanskrit, Greek, and Latin without believing them to have sprung from some common source, which perhaps no longer exists. There is a similar region, thou, not quite so forcible for supposing that both the Gothic and the Celtic had the same origin with the Sanskrit. भाषा विज्ञान का नामकरण।